Okay, good evening, everyone. Good Am I evening, audible? ma'am. Hi, Yes, good ma'am. evening, Vishal. Good evening. Good evening, Anu. Guys, please start turning on your cameras if possible. Yes, ma'am. Okay, so guys, I think I'm visible and audible, right? Hi, Vishal. Hi, ma'am. How are you? Yes, I'm doing good. Thank you for asking. What about you? I'm also good, ma'am. Okay. All right. So today we will, like, we have completed verbs, I think, yesterday, right? So I just want to, show you certain mistakes that we do in verbs. Okay. उससे पहले just and also we'll be giving some exercises for you guys to do, right? So just give me 1 minute. Let me just pull up my screen. Just a moment. So I think verbs, we were left with some more verbs, right? Just infinite. I think we have completed till helping verbs. From transitive verbs, we will start today, right? If I'm not wrong. So I'm just pulling up my screen. Let me know if everybody can see my screen. It's visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Just a minute. Hi, ma'am. Are you sharing the backup videos? Yeah, sorry. Are you sharing the backup videos like from past two classes I have absent? So, No, we are not doing it right away. We will be like एक सेकंड रुको मैं बोल रही हूँ एक सेकंड रुको doing some work wait mm, 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 mm. Yes, so no, I'm not sharing any video as of now. Okay, so you will be getting all this in YouTube, है ना? YouTube. So you need to subscribe the channel and you will get it. ठीक है? Okay. 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 Say the name of channel. Okay. All right. So I'll start with transitive verbs. Okay, and yes, in case of this helping verbs, okay, just before that, एक second, helping verbs के लिए मेरे पास और कुछ explanation है जो मैंने pull किया है. That is what I made it today only. Okay, just give one moment. First, let me just pull that screen for you. वही मैं बना रही थी, मैं ढूंढ रही थी कहाँ गया. ठीक है? Okay, here you go. You'll see it now on the screen. Yes. So modals or modal auxiliary verbs. ये आगे चल के we will be requiring this. You know, we need to understand what are modals and how, like, what are the usage of modals. ठीक है? तो modals जान लो. Modal क्या होता है? Modals are basically associated with verbs. So auxiliary verbs we have understood the last day. That is the helping verbs. So modals को modal auxiliary verbs भी कह जाता है. कहता है. ठीक है? These are simply the what one special type of verb, that is one special type of helping verb. ठीक है? जैसे we have discussed yesterday, day before yesterday, that there can be two types of verbs also. That is, one is the
helping verb, another is the main verb. So the helping verb is called as the auxiliary verbs, and auxiliary verbs, it's very difficult for the auxiliary verb to exist alone. They generally need one main verb to complete the sentence. Okay, and the main verb will also need auxiliary verb to express things much more clearly, especially when there will be any sentence where there will be the requirement for expression in ability, possibility, permission, any kind of obligation. Obligation matlab jo karna parega, any kind of, requirement, advice, and some other definitions and requirements that we will understand. So तब हम लोगों को auxiliary verbs का importance आता है या तो इसका requirement आता है. So modals क्या होता है? Modals are the special kind of helping verbs or the auxiliary verbs, and modal will always follow the main verb, right? Now यहाँ पे जो थोड़ा example से let us check this. यहाँ पे also like we are learning verbs, we have also learned pronouns, but then we are missing on some common mistakes that we do. तो वो आज हम complete करेंगे. Today my target is to complete the verbs. जो भी हम लोगों का है बाकी वो पूरा verbs complete कर लेंगे, ये भी complete कर लेंगे modals and all. उसके साथ थोड़ा exercise करेंगे. Exercise से पहले verbs related and pronoun related exercise से पहले we'll also understand few common mistakes that we make, or ये you guys can actually you can relate. Yes, these are the mistakes we make. Okay, now let's get back to this. So see, I cannot write I can. I can, like can is one of the auxiliary verb, we know that last day we have learned. So can verb जो है वो अलग से नहीं होता है, वो अलग से उसका कोई existence नहीं होता. We cannot understand the sentence. So if I say just I can, yeah, I can मतलब क्या? What is the? It's not complete. There is no complete meaning or sense to the sentence. ठीक है? But yes, इसका आंसर होता है. So I think someone asked me the last day that मैम अगर ये sentence होता है तो यहाँ पे भी तो we are using the helping verb, but still we can understand the sentence is getting completed. So yes, if there is one question or if there is a like a continuity to some topic or context, तो उसमें हो सकता है. जैसे कि कोई पूछ रहा है can you ride, I can say my answer can be I can. लेकिन I can का कोई अलग से इसका मीनिंग नहीं बनता है, तो वो कोई contextual sentences हो सकता है. But yes, the correct is that I can swim, I can ride, ये हो सकता है. So modal verb का existence alone नहीं होता है, उसके साथ एक verb चाहिए होता है. जैसे कि swim is the main verb here and can is the auxiliary verb here. Okay. Also, the main verb changes its ending, ending to this. जैसे कि s, ed और ing. So she can sings नहीं होता है, it will be she can sing, right? So please check कि verb का जो like ending है, ठीक है, वो ending change ना हो. बेसिकली जैसे कि I can swims नहीं होता, I can swim. तो modal verb में verb का जो original state है वही रहता है. On such कोई s, ed और ing on such. I can singing, she can singing नहीं होता है. So she can swim, I can sing, ऐसा होता है. So just remember जो verb का जो original form है वो रहता है, कोई s, ed और ing नहीं होता है when it is used when the main verb is used with the auxiliary verb. Now next, unlike regular verbs, modals don't add s for the third person singular he, she. Also this one. So if I say he swims, but अगर मैं he swims is the correct one. He swims मतलब वो उसको स्विमिंग आता है या तो वो स्विम करता है, he swims. बट अगर मैं can यूज कर देती हूँ यहाँ पे, मतलब I am introducing any auxiliary verb, तब even if the subject is singular, okay, even if the subject is singular, still the verb will be in its own original form. Remember. So वो s थर्ड पर्सन के साथ, जैसे कि he, she, it के साथ s यूज होता है. जैसे कि I swim, he swims, I sing, she sings, ऐसे होता है. बट अगर modal verb इसमें ऐड हो जाता, I mean
मॉडल वर्ब यहाँ पे किसी कहीं पे ऐड हो जाता है, जैसे कैन ऐड हो गया वहां पे, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यहाँ पे सिंगुलर, जैसे कि स्विम, स्विम ही रहेगा, ही है तो स्विम्स कर देंगे, नो, बिकॉज यहाँ पे देयर इज एन एंट्री ऑफ मॉडल वर्ब। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। अगर सिर्फ मेन वर्ब बैठता ही, शी, इट के साथ, तो स्विम्स एस ऐड होता, एस ऐड होता विद द थर्ड पर्सन, सिंस देयर इज नो since it's not only just the third person over here, third person singular subject. Okay, last day we have, remember, if you remember, we had done this one, first person, second person, third person, right? तो याद करो, अकॉर्डिंगली मॉडल वर्ब के साथ इट विल बी ही कैन स्विम नहीं होगा, या ही कैन स्विम्स नहीं होगा, ही कैन स्विम होगा। ओके, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जहां पे हम लोग काफी बार गलती करते हैं, ठीक है? तो वी गेट कंफ्यूज, अच्छा वो तो ऐसा रहता है तो ठीक है, ही कैन स्विम्स होगा, नो, ही कैन स्विम, बट अगर कैन हटा देंगे तो क्या होगा, ही स्विम्स। ओके, नेक्स्ट, do not use do, does, did for questions or negative. You simply put not after the modals for negative. Also यहाँ पे check करो, जैसे कि suppose we know that no, कोई भी sentence में don't, no, didn't, ये सब use हो जाता है तो sentence negative बन जाता है, ठीक है? So if I say she doesn't can swim, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि do, does ये use नहीं होता है when it is in the case of modal verbs. modal verbs के साथ do, does, did use नहीं होता है। so देखो ये sentence कैसे सुनने में भी गलत लग रहा है ना, कि she doesn't can swim, ये मतलब क्या होता है? so आप doesn't भी लगा रहे हो, can भी लगा रहे हो, ठीक है? if you are using she doesn't swim फिर भी चलता है, but then this actually grammatically ये incorrect है, बिकॉज यहाँ पे मॉडल यूज हो रहा है, मॉडल वर्ब है यहाँ पे, सो दिस वुड बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। सो ही, शी डजंट कैन स्विम, ये गलत है, करेक्ट क्या होगा, शी कैन नॉट स्विम, या तो शी कांट स्विम, सिंपल। सो यहाँ पे डू, डज, डिड का एप्लीकेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है व्हेन वी आर यूजिंग मॉडल वर्ब्स, ठीक है? सिमिलरली, अच्छा और क्या होता है, अगर कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो मॉडल वर्ब है, जो दैट मींस द ऑक्सिलरी जो वर्ब है, ठीक है, जैसे कि क्या है, कैन, कुड, राइट, इसको हम आगे लेके जाएंगे सो दैट वी कैन मेक एन इंटरोगेटिव क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने पहले पढ़ा है, नॉट द इंटरोगेटिव सेंटेंस, बट आई थिंक इन द इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा है इंटरोगेटिव क्या होता है, वी गॉट सम एक्सप्लेनेशन देयर, वी आस्क्ड, राइट? तो रिमेंबर, इफ इट इज इन अ क्वेश्चन फॉर्म, डज ही कैन स्विम, ये गलत है, डज ही कैन स्विम इज अगेन अ रॉन्ग इंग्लिश, सो इंस्टेड वी कैन से कैन ही स्विम। सो कैन यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब आगे आ जाएगा। So the question, how we will frame it? Can he swim? Question mark. Does he can swim? ये गलत है। Guys, यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, no, maybe? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So many times we do फॉन्ट this. साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए Sorry? मैम, फॉन्ट साइज Sorry? अपना दिख नहीं रहा है सही से। दिख नहीं रहा है? अब तो हो रहा है, लेकिन ये लेटर्स बहुत छोटे छोटे थे। अब ठीक है। पहले बोलना चाहिए। Okay. So if you want, you can take a screenshot of this or you can write. ठीक है? ले लो स्क्रीनशॉट या लिख लो कहीं पे, ठीक है? I'm giving you time, please do it now. हो जाने की बात बताना। कंप्लीट हो जाने के बाद बताना। If you have taken the screenshot, let me know. I'll just scroll down then.
डन है? लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? Yes, yes, yes. Yes, ma'am. थोड़ा जल्दी करो, नहीं तो Yes, वी ma'am. कांट कंप्लीट. हुआ? Okay, now we will start with the different modal verbs that are used. हम लोगों को पता है can, could, might, ठीक है, may, would, will, ये सारी चीज हमने लास्ट डे पढ़ा था, if I remember, right? Verbs में, modal auxiliary verbs में, लेकिन ये सबका अलग अलग मतलब होता है. हर जगह हम can नहीं यूज कर सकते, हर जगह हम may नहीं यूज कर सकते. तो as per the requirement, as तो just a single word, एक simple छोटा सा word पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर सकता है, राइट? तो वो वो हम जानते हैं. तो लेट अस सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द मॉडल्स. दिस आर द कॉमन मॉडल्स दैट वी यूज एंड what is the basic, the primary, what is the basic sense or requirement when we are using it. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी जब से मैं पढ़ा रही हूँ ना गाइस, तो आप इसके साथ आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, सो दैट वी डोंट हैव टू स्पेंड अलग से टाइम फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट, है ना? चलो, सो फर्स्ट इज कैन. तो कैन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम? वेयर वी कैन यूज द वर्ड कैन. काफी टाइम हम लोग समझ नहीं पाते कि क्या यूज करेंगे. कैन यूज करेंगे, कुड यूज करेंगे, मी यूज करेंगे, विल यूज करेंगे. तो कैन कहाँ कहाँ यूज होता है? रिमेंबर, कैन विल बी यूज्ड फॉर एबिलिटी. किसी चीज का, किसी इंसान का, किसी चीज का, किसी जगह का कोई पावर, कोई एबिलिटी, कोई स्किल, ठीक है, कुछ भी जो कि उसका क्या कहते हैं, उसका पावर है, उसके पास है वो चीज, ठीक है, वो कर सकता है. ऐसे सिनेरियो वो कर सकता है, ठीक है. कोई भी चीज कर सकता है, कोई भी इंसान कुछ कर सकता है. तो ये कर सकता मतलब एबिलिटी. So when we are talking or when we are trying to express any ability of anybody, okay, कोई पावर है उसके पास, कोई स्किल है, कोई स्पेशल उसका क्या है, ब्लेसिंग्स है जिससे वो कर सकता है, whatever. So that time we will use the word can. जैसे कि I can speak 3 languages, ये मेरा एबिलिटी है, ये मैं कर सकती हूँ कि मैं 3 लैंग्वेजेस में रीड राइट स्पीक कर सकती हूँ, मतलब मैं बोल सकती हूँ, समझ सकती हूँ, ठीक है. आई कैन राइड बाइक, तो ये क्या है, ये मेरा एबिलिटी है, राइट. आई कैन डांस, तो ये क्या है, एबिलिटी है. आई कैन सिंग, आई कैन स्विम, तो ये करना, ये एबिलिटी है, ठीक है. देखो, माई लिटिल ब्रदर कैन नाउ राइड अ बाइसाइकिल, मतलब यहाँ पे देखो कैन है एक्चुअली द मॉडल वर्ड, लेकिन सेंटेंस कितना अच्छे से है, नाउ राइड अ बाइसाइकिल. ये सिंपल छोटा सा वर्ड नाउ, इससे पूरा सेंटेंस कर दो. नाउ इज नॉट अ मॉडल वर्ब, जस्ट टू एक्सप्रेस, जस्ट टेल यू गाइस कि नाउ से ये हम लोगों को पता चलता है कि मेरा जो छोटा भाई है वो पहले तो साइकिल नहीं चला पाता था, लेकिन अभी ही कैन. सो माय लिटिल ब्रदर कैन नाउ राइड अ बाइसाइकिल. So this is how you can shrink sentences. Okay, next, can be used while we are asking for permission. किसी से कोई चीज पूछ रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, तब हम लोग कैन यूज कर सकते हैं. लेकिन इफ इट इज एन इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट, इफ इट इज अ इनफॉर्मल परमिशन, जैसे कि मैंने आई थिंक लास्ट क्लास सौम्या वाज देयर आई थिंक, हाँ, तो वो कुछ पूछ रहा था, तो मैंने क्या कहा, आप कैन से मत बोलो, आप मे से बोलो. तो परमिशन वो भी है. तो कहीं पे कोई परमिशन आप ले रहे हो जो कि फॉर्मल है, जो कि ऑफिस में हो सकता है, आप किसी लाइक प्रोफेशनल से या कोई भी स्किल्ड इंसान से, किसी और से पूछ रहे हो, जैसे कि प्रोफेशनल लैंग्वेज में कैन वर्ड नहीं यूज होता है, वहां पे क्या यूज होता है, मे, MAY. तो इनफॉर्मल परमिशन के लिए आप पूछ सकते हो. जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो और वहां पे एक साइड पे जगह खाली है, सो आप पूछ सकते हो कैन आई सिट हियर, राइट. आप पूछ सकते हो. आप
दोस्त है, दोस्तों के साथ बैठे हो, there is a glass of water, you can ask your friend that can you pass me that glass of water, so that you can say. बट अगर यही चीज आप अपने बॉस से या अपने ऑफिस में किसी से पूछ रहे हो, सो इट विल बी लाइक can की वजह, without like instead of using can, you can say this, right? May you please pass the water. ठीक है, can you pass the water, नहीं वो glass of water बोल के may you please pass the glass of water, so that time you will be using may. तो informal permission के लिए can use होता है, ठीक है. और परमिशन, कोई भी इनफॉर्मल परमिशन लेना एंड परमिशन देना, बोथ लेना एंड देना. परमिशन आप ले रहे हो कैन आई, और परमिशन दे रहे हो यू कैन, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, कैन यूज होता है. तो परमिशन रिलेटेड, परमिशन देना या तो परमिशन लेना, लेकिन इनफॉर्मल वेज में देन वी विल यूज द वर्ड कैन. अब कोई पॉसिबिलिटी में भी यूज हो सकता है कैन. इट कैन गेट वेरी कोल्ड हियर इन विंटर. विंटर में यहाँ पे ठंडा पड़ सकता है या ठंड पड़ सकता है, ठीक है. एक्सीडेंट्स कैन हैपन, ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट. नेक्स्ट, कुड कब यूज हो सकता है. कुड इज अगेन द पास्ट ऑफ कैन बट ऑल्सो यूज्ड फॉर अदर थिंग्स. कैन का पास्ट फॉर्म टेंस क्या है, कुड है. जैसे कि पास्ट एबिलिटी, ओके. तो जिसके पास पहले एबिलिटी था, अभी शायद से वो एबिलिटी नहीं है लेकिन पहले था, तब ऐसे सिनेरियोज में वी कैन यूज द वर्ड कुड. जैसे कि व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन मच फास्टर. जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत इससे भी तेज में दौड़ सकती थी, या मैं बहुत तेज दौड़ सकती थी, अभी नहीं दौड़ सकती. दैट मीन्स ओके. शी कुड प्ले द पियानो. कुड मतलब यहाँ पे जब भी ये सेंटेंस एबिलिटी के लिए हम अगर कुड यूज कर लेते हैं, इसका मतलब है वी आर रेफरिंग टू पास्ट. देयर इज अ हाई चांस दैट थिंग, दैट एबिलिटी इज नो मोर प्रेजेंट नाउ. वो पहले था, वो एबिलिटी अभी नहीं है. तो अगर कोई प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में आप बोलना चाह रहे हो तो उसमें कैन यूज करो. कोई पास्ट एबिलिटी के बारे में आप बता रहे हो, किसी को बोल रहे हो, तब कुड यूज करो. सिंपल है, ठीक है. नेक्स्ट, सिमिलर पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर हम बहुत ध्यान से सुनो ये चीज, कैन भी पॉसिबिलिटी है, कुड भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुड तब यूज होता है जब पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है. कैन तब यूज होता है जब पॉसिबिलिटी थोड़ा ज्यादा है, ठीक है. जस्ट द वर्ड कैन चेंज द सेंटेंस मीनिंग. एक वर्ड कैन या कुड. तो यू कैन से इट कैन रेन लेटर. अगर मैं बोल रही हूं इट कैन रेन लेटर, ओके, दैट मीन्स बारिश हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी हाई है. बट इफ आई से इट कुड रेन लेटर, मतलब उतना मैं श्योर नहीं हूं, हो भी सकता है, बट यू नो द पॉसिबिलिटी इज क्वाइट वीक. गॉट इट? That could be the answer. If I say that can be the answer, that means I'm quite sure that it is the answer. Maybe not 100%, but at least 80-90% I'm sure. But when I'm saying could, that means the possibility is kind of 50-50, I can say. ठीक है. Next, permission. Permission जब आप could use कर रहे हो तो could में चीज बहुत polite way में अगर किसी से पूछ रहे हो तब यूज हो सकता है. आप बोल सकते हो मैम क्या मैं फॉर्मली यूज कर सकती हूँ. यस, यू कैन यूज फॉर्मली द वर्ड could. Could can also be used in formal ways or in informal ways. If you're seeking permission or you're giving permission to any elder, then you can use the word could. ठीक है. So could I possibly ask you a question or could you help me with this? ठीक है. Next, may. Next is may. Can, could, these are all auxiliary verbs. Next, may. May भी परमिशन में यूज हो सकता है और पॉसिबिलिटी में यूज हो सकता है. ठीक है. लेकिन may जो है, जो मैं बता रही थी, कैन इनफॉर्मल में होता है और may कब होता है, एकदम फॉर्मल में. तो फॉर्मली ऑफिस में आप कभी भी बात कर रहे हो, कोई चीज परमिशन ले रहे हो, दे रहे हो, कोई एक्सचेंज ऑफ डिस्कशन हो रहा है, प्लीज यूज द वर्ड may. May I come in? You may begin the exam now. So you can see permission देना and permission लेना, but in a formal note. Next, possibility. यहाँ पे भी है
possibility, you know, like it is in a more formal way. आप कभी भी सुनना कहीं कहीं पे भी, you know, like in flight announcement और in train announcement, ठीक है, वहां पे can नहीं यूज होता है, they mostly use may, ठीक है. The flight may be delayed due to fog. आप सुनना कभी announcement, they will never use can or could. They would use the word may because again may जो word होता है वो directly formal things के साथ ही जुड़ा जाता है उसको, चाहे वो परमिशन हो चाहे वो पॉसिबिलिटी हो. शी मे अराइव लेट. सपोज आप ऑफिस में पूछ रहे हो आज अभी तक बॉस नहीं आए हैं, तो शी कैन बी लेट, बट शी कैन बी लेट कैन बी, यू नो, अगर आप ऐसी इंग्लिश देख रहे हो, बहुत ही स्क्रूटिनाइज करके आप इंग्लिश देख रहे हो, सो व्हेन दैट इज करेक्ट, समझ तो आ रहा है. इफ आई से नो शी कैन बी लेट, बट इफ आई से नो शी मे कम लेट और शी मे अराइव लेट, सो दोनों में डिफरेंस ये कि कैन इज बिट रूड एंड मे इज मच मोर पोलाइट. और वो मैं अपने बॉस के को अगर मैं बॉस से पूछ रही हूँ, बॉस के बारे में बोल रही हूँ, तो मे यूज करना ज्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है. नेक्स्ट माइट. माइट इज अगेन द पास्ट ऑफ मे, जैसे कि कैन का पास्ट गुड है, सो वैसे मे का पास्ट क्या है, माइट. तो माइट भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, लेकिन माइट तब यूज होता है जब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, बहुत वीक पॉसिबिलिटी है, ठीक है. आई माइट गो टू द पार्टी बट आई एम नॉट श्योर, मतलब बहुत, मतलब ना के बराबर है ना. कोई आपको बोल रहा है आज आ रहे हो क्या मेरे घर, ठीक है, आपको मन नहीं है, तो यू कैन से आई माइट कम टुडे, आई माइट गो टुडे, ठीक है. दैट मीन्स अगर वो इंसान जिससे आप बात कर रहे हो, अगर वो इंग्लिश में थोड़ा स्ट्रांग है, तो उसको समझ आ जाएगा कि यू आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड, क्योंकि आपने यूज कर लिया वर्ड माइट, ठीक है. तो माइट में क्या है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, तब हम यूज कर सकते हैं. He might have left his keys at home. हो सकता है कि आप घर पे भी वो भूल सकता है, कहीं पे भी भूल सकते हैं. So might is just again यहाँ पे यूज हो रहा है, it's an option, ठीक है. Permission again very polite and tentative. Might I suggest an alt. Might permission में आप बहुत ही rare यूज होता है. मैंने तो कभी I don't remember, I can't recall using might for giving any permission or taking any permission. So just for your understanding and knowledge, you can keep it in a mind. You can keep in your mind that might can be used for a very polite or a tentative way in case of permission. ठीक है. Next is must. Must क्या होता है, जो कि necessity में use होता है. So must is a word, is an auxiliary verb. It is used when we are expressing something which is quite an important thing and which is very important or necessity and obligation जो करना है, ठीक है. मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, तो मुझे मतलब मैं ऑफिस में आ रही हूँ, ऑफिस रिलेटेड आज मेरा वर्किंग डे है, तो मेरा ऑब्लिगेशन ये है कि मैं काम करूँ ऑफिस का, है ना. सो दिस इज माय ऑब्लिगेशन. सो तब यूज होता है माइट. यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट इन द कार. ये इंपॉर्टेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ये नेसेसिटी है, ये आपको करना ही पड़ेगा. सो जब ऐसे सेंस में, ऐसे कंटेक्स्ट में बात होता है, देन वी विल बी यूजिंग द वर्ड मस्ट. आई मस्ट स्टडी फॉर माई एग्जाम्स. तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शंस, ठीक है. एंड माइट इज यूज्ड फॉर एनीथिंग व्हिच इज वेरी सर्टेन, ठीक है, जो काइंड ऑफ सर्टेनिटी, मतलब जिसका संभावना बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है. He hasn't eaten all day, he must be hungry. तो डेफिनेटली कोई अगर पूरा दिन नहीं खाया है, तो जाहिर सी बात उसको भूख लगेगा ही लगेगा. सो पॉसिबिलिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई. ओके, सो कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कोई स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी. सर्टेन मतलब वही होता है सर्टेनली. आप पूछते हो ना कि आर यू अवेक नाउ, सर्टेनली. देखना ये रिप्लाई भी आता है सर्टेनली, मतलब यस, ऑब्वियसली, लाइक सर्टेनली, ऑब्वियसली काइंड ऑफ थिंग. सो ऑब्वियस पॉसिबिलिटीज, जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब 99% पकड़ लो एकदम, ठीक है. मस्ट, तब हम लोग मस्ट यूज करते हैं. नेक्स्ट हैव टू. हैव टू. सो हैव टू, अब देखो हैव टू हम लोग एकदम बहुत यहाँ पे थोड़ा हैव टू को लेके थोड़ा बहुत डिबेट भी है. कोई बोलता है कि ये मॉडल है, कोई लोग बोलता है कि नहीं, वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज अ मॉडल. बट हैव टू
काइंड ऑफ सिमिलर वे पे यूज होता है, या तो वो उसका जो प्लेसमेंट रहता है वो मॉडल की तरह कहीं पे होता है। तो नो वरीज, हमें कोई पूछेगा नहीं कि हैव टू इज अ मॉडल और नॉट, टेल यस और नो और टेल ट्रू और फॉल्स। हैव टू का यूजेज हम लोग जान लेते हैं। हैव टू मतलब जो करना है, अगेन मस्ट और हैव टू का मोर और लेस सेम ही है। ही मस्ट स्टडी हार्ड टू पास द एग्जाम, he have to study hard to pass the exam. ठीक है? So I have to work tomorrow, you have to pay tax, कोई रूल हो गया, कोई स्पेशली कोई एक्सटर्नल थिंग्स हो गया, मतलब कोई रूल हो गया, कोई नेसेसिटी है, कोई इंपॉर्टेंस है, दैट इज इट। ओके ओके, नेक्स्ट हैव टू बोला कितना दिमाग खराब करने का दरकार नहीं है। यू कैन अवॉइड हैव टू, इंस्टेड अगर जहां पे हैव टू है आप मास्ट लगा के, ठीक है, आप काम कर चला सकते हो। नेक्स्ट इज शुड। नहीं, शुड कब यूज होता है? अगेन शुड सबको पता है, जो कि एडवाइस के तौर पे यूज होता है। कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी यूज होता है शुड। जैसे कि यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स टू स्टे हेल्दी, राइट? दे शुड अराइव बाय नून, मतलब ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, है ना? तो हम लोग बोलते हैं ना, तो कोई एडवाइस हो गया, रिकमेंडेशन हो गया, राइट? यू शुड ट्राई दिस कंपनी, यू शुड ट्राई गिविंग इंटरव्यू फॉर दिस कंपनी एज वेल। तो ये क्या हो गया? रिकमेंडेशन। कोई मेरे को रिकमेंड कर रहा है, भाई ये कंपनी में भी आप इंटरव्यू दे के आओ, ठीक है? एंड शुड एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी यूज होता है। द पैकेज शुड बी हियर बाय फ्राइडे। मैंने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया है, तो मम्मी पूछ रही है कि भाई ये ऑर्डर कब तक आएगा, तो भाई मंडे तक तो आ जाना चाहिए ऑर्डर, ये तो यहाँ पे ऐसा ही लिखा है। तो ये बोलने के लिए हम लोग क्या यूज बोल सकते हैं? दैट द पैकेज शुड बी अराइविंग बाय मंडे और द पैकेज शुड बी हियर बाय मंडे, राइट? दैट्स व्हाट इज मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन। तो आना तो चाहिए, बोलना तो चाहिए। तो ये जो आना चाहिए, बोलना चाहिए, करना चाहिए, ये जो लाइक कंसेप्ट होता है, यहाँ पे हम लोग शुड यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट, ऑट टू कब यूज होता है? ऑट टू और शुड, ऑट वर्ड बहुत रेयर यूज होता है। हम लोग जनरली इंडियंस, वी डू नॉट यूज ऑट दैट मच, commonly as we are using the word should. But again, ought is a similar word that means the same like should, ठीक है? लेकिन ought is थोड़ा फॉर्मल है, और थोड़ा इसका अगर आप देखते हो कि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है हमारे यहाँ, मतलब इंडियन कल्चर में। बट यस, ought to we can use, सेम होता है शुड की जैसा ही होता है। यू ought to apologize, you should apologize नहीं करके यू ought to। अच्छा, ought अलग नहीं होता है, शुड अलग होता है, शुड टू नहीं होता है। शुड SHOULD, शुड होता है, लेकिन शुड का सिनोनिम्स अगर आप बोल सकते हो कि इट्स ought to, हम लोग ought to टुगेदर यूज करते हैं। जैसे कि have to हमने देखा, वैसे ही ought to, ठीक है? We ought to respect our elders, we should respect our elders, we ought to respect our elders. You should apologize, you ought to apologize, ठीक है? नेक्स्ट, विल कब यूज होता है? कोई इंटेंशन या प्रेडिक्शन के लिए, राइट? एक इंटेंशन, आई विल कंप्लीट द टास्क बाय टुमारो, राइट? आई विल मेक 50 कॉल्स टुडे, राइट? आई विल टेक 12 इंटरव्यूज टुडे। ये एक एफर्मेशन है, एक लाइक इंटेंशन है, एक काइंड ऑफ क्या कहते हैं, मतलब एक टारगेट जैसे है, ठीक है? when we are trying to explain something in target based, right? You will complete this by today, ठीक है? kind of a target based, ये will तब यूज होता है, ठीक है? also कोई प्रॉमिस के लिए, कोई प्रॉमिस जैसे कि willingness to help, I will help you, I will always be there for you, right? I will be listening to you, I will be meeting you tomorrow. तो कोई भी प्लान, प्रॉमिस, कुछ भी जहाँ पे कुछ विलिंगनेस हो, कुछ लाइक ईगरनेस हो चीज को लेके, तो वहां पे विल वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट, वुड इज अगेन द पास्ट टेंस ऑफ विल, एंड वुड क्या यूज होता है?
वुड जैसे कि कोई क्या कहते हैं, अगर ऐसा होता तो मैं ये करती, अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो मैं ऐसा करती। तो काइंड ऑफ ऐसा चीज के लिए वुड यूज होता है। जैसे कि इफ आई हैड मोर मनी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, if I had more time, I would definitely be meeting you today. I would have met you today, or I would be, you know, like talking to you today. कुछ भी। तो एक मतलब would अचानक से वैसे यूज नहीं होता है, मतलब जनरली, ठीक है। बट वुड यूज होता है कोई सेंटेंस, मतलब दो सेंटेंस में बेसिकली आप देखना वुड यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे इफ आई हैड मोर मनी, सिमिलरली if I had more time, right? If I would be like, if I had like, अगर ये होता तो ये मैं करती और ये मैं कर सकती थी। तो काइंड ऑफ ऐसे सेंस में वुड यूज होता है, ठीक है। मतलब एक जैसे कि यहाँ पे लिखा है इफ, कोई इफ अगर आ जाता है, इफ थिंग्स वर डिफरेंट देन ऐसा होता, इफ एल्स वाला सिनेरियो आ जाता है जब हम वुड यूज करते हैं। वुड परमिशन के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। वुड यू पास मी द ग्लास ऑफ वाटर, अगेन वुड हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। कुड यू पास मी द ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू पास मी द ग्लास ऑफ वाटर, ओके। वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, राइट? वुड यू माइंड इफ आई टेल यू समथिंग। तो ऐसे में भी वुड यूज होता है। बट अगेन वुड का यूसेज ही बहुत कम होता है, वुड हम लोग हार्डली यूज करते हैं, ठीक है। सो कोई हैबिचुअल प्रैक्टिस के लिए भी वुड यूज हो सकता है, मतलब जो हम लोग करते हैं। जैसे कि एवरी समर वी वुड गो कैंपिंग बाय द लेक, एवरी विंटर वी वुड गो फॉर द फीस्ट विद द फैमिली, विद माय फैमिली, राइट? तो जो एक हैबिचुअल एक्शन है जो रिपीट होता है उसमें भी होता है। एवरी समर वी वुड गो कैंपिंग बाय द लेक, अगर ये मैं सेंटेंस बोलती हूँ, मतलब मोस्ट लाइकली अभी वो समर सीजन नहीं है, जब समर आता है तब हम लोग जाते हैं। एक और अगर सोचते हो, अब थोड़ा सोचते हो सेंटेंस को लेके, तो मतलब हम लोग ये भी समझ सकते हैं सेंटेंस पढ़ के कि अभी शायद वो समर सीजन नहीं और अभी हम लोग कैंपिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन समर में हम लोग जाते हैं, मतलब अभी समर नहीं है, काइंड ऑफ लाइक दैट, ओके। सो this are some, you know, auxiliary models and its usage जो हम लोग kind of like spoken English में use कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये करा लिया है आप लोगों को, so that would be helpful for you guys. Also some extra, you know, notes on models. We generally cannot use two models together, जैसे कि I will can go, ठीक है। I will be able to go, that will be correct. I will can go, मतलब कैन तो होता है कि कैन वर्ड तो यूज होता है जब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तब कैन यूज हो सकता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है और अभी भी ये फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं। सपोज ऐसा कोई सिनेरियो जहां पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और ये पॉसिबिलिटी जिस चीज रिगार्डिंग हम बात करें वो फ्यूचर में होगा, तो आपके दिमाग में आ सकता है, तो मैम ने विल बोला, विल मतलब फ्यूचर में बात कर रहे हैं, कैन मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो सेंटेंस ऐसे बना लेते हैं, आई विल कैन गो। तो डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग, है ना। तो इसको थोड़ा रिफ्रेस करके वी कैन से आई विल बी एबल टू गो, ठीक है। सो बी एबल टू, हैव टू, बी अलाउड टू, these we cannot consider as pure model, therefore we can say these are semi models, or they, you know, they give the expression like models, ठीक है, क्योंकि they function like models but they are much like a regular verbs. जैसे कि फ्यूचर कोई एबिलिटी के बारे में हम बता रहे हैं तो आई विल बी एबल टू, है ना। जैसे कि आई विल बी एबल टू फिनिश द रिपोर्ट, यहाँ पे कैन, डज नॉट हैव, ये सब नहीं यूज होगा, यहाँ पे आई विल बी एबल टू। देख लो कैसे हम लोग सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं। कोई पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं तो आई विल बी एबल टू होगा। कोई पास्ट के बारे में बोल रहा है, शी हैड टू। आज कोई आके पूछ रहा है, भाई शी इज नॉट इन द सेशन टुडे, ओके, सो आई कैन से शी हैड टू लीव अर्ली, और she had to attend another session, that's the reason she is not present here in the meeting.
तो कोई भी पास्ट ऑब्लिगेशन के लिए भी यहाँ पे हम लोग मस्ट यूज नहीं कर रहे, तब आप लोग रिप्लेस कर सकते हो हैड टू, फ्यूचर के लिए आप यूज कर सकते हो विल बी एबल टू। गॉट इट? सो बी एबल टू फ्यूचर है तो इसलिए विल ऐड कर दिया, नहीं तो बी एबल टू, हैव टू, बी अलाउड टू। आप लोग ये 3 वर्ड्स को लेके खुद भी रिसर्च कर सकते हो, थोड़ा खुद भी सेंटेंस बना के कंटेक्स्ट बना सेट करके कोई सेंटेंस बना के आप क्लास में ला सकते हो, एंड यू कैन से आस्क इफ दिस सेंटेंस इज फिट टू यूज और नॉट। ठीक है, ऑलराइट गाइस, यहां तक सबको क्लियर है? आई गेस कहीं पे किसी को डाउट है? यस, नो, मे बी? One more is the ma'am cell. हाय सुनंदा, यस बताइए। Yes, cell is there na? Where we can use that one? कौन सा? Cell, SHAL. शैल, शैल, Yeah. हाँ शैल भी यूज हो सकता है, करेक्ट। हम विल और शैल मोर और लेस यूज होता है, ठीक है। अगेन शैल Like इज नॉट वेरी मच इन यूज, आपको भी पता है ना, तो शैल उतना हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन यस शैल भी है। वेरी गुड, गुड वन। ओके, एनीथिंग मोर गाइस? यहां तक सबको क्लियर है ना? Yes, ma'am. Ma'am, you told about phrasal verbs you show. हाँ वो मुझे याद है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक मिनट, फ्रेजल वर्ब्स में बोली थी ना, दिखाएंगे आज, रुको। Yeah. वर्ब्स में ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। एक मिनट रुको, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स दिखा देती हूँ, फिर फ्रेजल वर्ब्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आई डोंट थिंक विल हैव टाइम अगेन टुडे, यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, है ना, देयर इज सो मच टू गो। और जब मैं कराने बैठती हूँ तो मुझे लगता है ये भी करा देती हूँ, वो भी करा देती हूँ, ये भी करना है, वो भी करना है ना, एंड दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट। एक मिनट रुको, फ्रेजल वर्ब्स ना शायद से देखते हैं होता है या नहीं, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन, एक सेकेंड। ओके, सो ट्रांजिटिव वर्ब्स, नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस। ऑक्सिलरी वर्ब तक हम लोग कल कर रहे थे, है ना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स यही है। तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स जो है, इसको हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़े, क्योंकि इस ये कैन कोड में माइट इसका थोड़ा, यहाँ पे देखो शैल वर्ड इज मेंशन्ड, ठीक है। सो ये थोड़ा हम लोग समझ नहीं पाते कब कहाँ क्या यूज करना पड़ेगा। सो आई होप द कंसेप्ट विल गेट क्लियर once you start understanding things. Okay, चलो next, transitive verbs. So transitive verbs कब use होता है? जब when we are referring to any action verbs, okay, that requires a direct object. Now transitive और intransitive verbs में एक बहुत मजेदार चीज है, क्या है? Transitive verb will always require a object, ठीक है, बट intransitive verb में ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा फिर भी चलेगा। जैसे कि हम लोगों को पता है एक सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, ये सेंटेंस का बेसिक होता है ना। लेकिन आप लोग अगर देखोगे तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में ये तीनों प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स में? सब्जेक्ट तो डेफिनेटली रहेगा, एक सेंटेंस में तो बिना सब्जेक्ट का कुछ होगा ही नहीं, तो सब्जेक्ट मतलब हीरो, तो सब्जेक्ट रहता है, ओके, ऑब्जेक्ट रहेगा और एक्शन रहेगा, सब रहेगा इसमें, ठीक है। तो वहां पे आप लोग अगर पूछते हो, ठीक है, तो पूछते हो, इफ यू मेक लाइक क्रिएट अ क्वेश्चन, इफ यू आस्क अ क्वेश्चन व्हाट और हूम, देयर विल बी आंसर टू इट। जैसे कि शी रीड्स अ बुक, राइट, व्हाट शी रीड्स अ बुक, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, बुक क्या है, अ बुक इज द ऑब्जेक्ट हियर, so that is the transitive verb. Clear? He kicked the ball. What he kicked? The ball, right? They are like
suppose Ram is playing with Anil in the garden. Ram is playing with Anil in the garden, or Ram and Anil are playing in the garden. Ram and Anil are playing in the garden. ठीक है? So Ram is playing with whom? With Anil, right? तो एक complete thing है, एक complete sentence है, एक complete meaning है, वो होता है transitive verbs. जैसे कि she reads a book, यहाँ पे reads हो गया, he kicked the ball, यहाँ पे kicked हो गया. Now intransitive verbs में अगर आप देखते हो, you will not get any answer to what or who, because in intransitive verb, ठीक है, you will see the action word was used. अच्छा, both transitive and intransitive are लेकिन action verbs. यहाँ पे action verbs ही होता है, ठीक है, मतलब action verbs ही रहेगा. So transitive and intransitive both are action verbs. Intransitive verbs, the action verbs will be associated with an object to complete the sentence. But in intransitive verbs, okay, the action word will not be having any direct object to complete the sentence. So the action word will be enough to complete itself. There will be no requirement of object. कोई object का requirement ही नहीं होगा. वो okay, वो subject का ही action होगा जो complete sentence में आ जाएगा. जैसे कि the bird sings. Object क्या है? कुछ नहीं है. Subject क्या है? Birds. क्या कर रहा है? गा रहा है. So it is singing or it sings. So the bird sings. हो गया. The sun rises. The sun rises. He slept soundly. Complete यहाँ पे. This is also complete. ठीक है? Now check on this. Many verbs can be both transitive and intransitive depending on their usage in sentence. Example, she eats apple. This is transitive. और intransitive क्या हो सकता है? She eats quickly. Just for your information, ठीक है? जान लो transitive और intransitive verbs होता है, right? So if you say the bird sings, ये भी complete sentence है. The bird sings beautifully, ये भी complete sentence है, ठीक है? But the difference is एक transitive sense में use हो रहा है, एक intransitive sense में use हो रहा है. If I say the birds sing, the birds sing, ये क्या है? ये transitive verb है. If I say the birds sings beautifully, then it is intransitive, right? Next, finite क्या होता है? Finite verb shows tense. अब finite verb थोड़ा देख लो, क्योंकि यहाँ पे tense हम लोग अभी तक आए नहीं है. We still did not complete or we did not, stepped into tense. It's just for your understanding. A finite verb show tense, past, present or future. It will show the person, either the person we are speaking is first person or second person or third person. Finite है तो हर एक चीज में count होगा, हर एक चीज बहुत ज्यादा specific होगा. अगर tense है तो specific होगा, person है तो specific होगा, number है तो वो भी specific होगा. It is the main verb in a sentence and can stand alone. Obviously, finite verb is the main verb and it will stand alone. जैसे कि she walks to school. So she, यहाँ पे देखो, we can identify the person, right? We can identify the tense. So यहाँ पे दो she walks to school. अगर ये sentence को हम मतलब ये postmortem करते हैं, तो sentence में subject भी है, sentence में object भी है, sentence में action verb भी है. सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है. तो ये हो गया पोस्टमार्टम ऑफ द सेंटेंस. सबका आंसर मिल गया मुझे यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट, दे एट डिनर. अगेन पास्ट टेंस है, दे है, प्लूरल है, राइट? एंड सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है. इन नॉन फाइनाइट वर्ब व्हाट हैपेंस? इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स जस्ट उल्टा होता है. जैसे कि ट्रांजिटिव का उल्टा इंट्रांजिटिव हो गया. सिमिलरली फाइनाइट वर्ब्स का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या होता है? कोई लाइक स्पेसिफिक कोई टेंस या पर्सन या नंबर या एक्शन उतना स्पेसिफिक नहीं होता है. एंड नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स, they will not be acting as a main verb of the sentence. They will require a main verb to complete the sentence. यहाँ पे main verb नहीं बोल के हम बोल रहे हैं finite verb. जैसे कि नॉन फाइनाइट verbs cannot stand alone. It will require a finite verb to complete the sentence. ठीक है? Just the understanding. ठीक है?
ऑल राइट, वी विल डू दिस लेटर, ये हम लोग बाद में समझेंगे. जस्ट मेन जो हम लोगों को था वो हमने कंप्लीट कर लिया है. अब these are the list of regular and irregular verbs. रेगुलर वर्ब्स क्या होता है? रेगुलर वर्ब्स मतलब जिसका एकदम सिंपल है, जैसे कि एक्सेप्ट का पास्ट टेंस क्या होगा? एक्सेप्टेड. ठीक है, एक्सेप्ट का पास्ट टेंस एक्सेप्टेड होगा. उसका पास्ट पार्टिसिपल, अच्छा बेस, जो बेस फॉर्म होता है V1, सिंपल पास्ट होता है V2 एंड पास्ट पार्टिसिपल होता है V3. ये भी थोड़ा याद रखो. बेस में V1 हम उसको कहते हैं, सिंपल पास्ट में V2 कहते हैं और पास्ट पार्टिसिपल में V3 कहते हैं. Tomorrow we also will do this 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 V1 V2 V3. I think the last session we have done it, है ना सौम्या? V1 V2 V3 करके हमने किया था ना, एक हमने चार्ट दिया था आप लोगों को. सौम्या देन यस. तो अभी ये लिख लो, ठीक है. कल वो करते हैं और दूसरा वो हम करते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स दे देते हैं. ठीक है, अभी ये वाला चीज लिख लो प्लीज. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. एक्सेप्ट का पास्ट क्या होगा? एक्सेप्टेड. वो पास्ट पार्टिसिपल में भी एक्सेप्टेड ही होता है. तो ये होता है रेगुलर, जहां पे एक ईडी लगाने से या डी लगाने से, मतलब जो वर्ब है उसके साथ ईडी या डी लगाने से वो पास्ट हो जाता है. लेकिन देन देयर आर मेनी लाइक वर्ब्स जिसका कोई पैटर्न नहीं होता है, उसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, तो उसको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं. रेगुलर वर्ब्स क्या होता है? सिंपल वर्ब्स होता है जिसके पीछे, ठीक है, ईडी या डी लगा के उसको हम इजीली पास्ट बनाते थे. लेकिन देयर आर अदर वर्ब्स जिसको हम ईडी या डी लगा के पास्ट नहीं बना सकते हैं. ठीक है, तो उसको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं. उसका कोई पैटर्न नहीं होता है ना. तो हम लोग काफी टाइम गलत वर्ड बोलते हैं उसको पास्ट बनाने के लिए, हर वर्ड में के साथ ईडी या डी लगा देते हो, वो हमको लगता है कि वो तो पास्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है. तो वी विल नो दैट एज वेल. तो दीज आर जस्ट फ्यू वर्ड्स दैट आर क्वाइट that are useful or that we use quite often, है ना. और भी बहुत बहुत वर्ड्स होता है डेफिनेटली, सो वो आगे चल के अगर पॉसिबल है तो जितना हो सके आई विल प्रोवाइड यू, और आप लोग खुद भी थोड़ा प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हो. सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ठीक है, हो जाए तो प्लीज मुझे बताना. विल टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट मी नो. ओके, आई एम शेयरिंग यू द लिस्ट ऑफ रेगुलर वर्ब्स एंड द लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स. ठीक है, हो जाए तो प्लीज स्क्रीन शेयर बोलना, मैं स्क्रॉल करूंगी नीचे. ठीक है, डन है. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we are coming to the irregular verbs. Irregular verbs मतलब we just explained that is not having any fixed pattern. कुछ भी हो सकता है उसका पास्ट. तो ये चीज थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा. जैसे कि ब्रेक का पास्ट ब्रेक्ड नहीं होगा, ब्रेक का जो सिंपल पास्ट होगा वो ब्रोक होगा. अगर ये एक्शन वर्ड हम लोग पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते तो वो ब्रोकन हो जाएगा. तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. ठीक है, ब्रेक, ब्रेक्ड बोल के कोई वर्ड नहीं होता है, बट मेनी टाइम्स वी यूज द वर्ड ब्रेक्ड. सिमिलरली बिल्ड के साथ बिल्डेड नहीं होता है, बिल्डेड बोल के कोई वर्ड नहीं है, इट इज बिल्ट. राइट, सो प्लीज इरेगुलर वर्ब्स पे थोड़ा ध्यान दो. और ये वर्ड्स हम काफी यूज करते हैं. बिगिन, बिगैन, बिगान. देखो बिगैन का पास्ट क्या होता है? बिगान, पास्ट पार्टिसिपल. बिकम का पास्ट होता है सिंपल पास्ट, बिकेम होता है.
है ना, और V3 देखो वापस से बेस V1 हो जाता है. सो बिकम V1 और V3 में बिकम है, लेकिन V2 में इट इज बिकमिंग बिकेम. ऑलराइट, हो गया. Yes, ma'am. Done, ma'am. जैसे कि ड्रिंक का भी पास्ट टेंस ड्रैंक और पास्ट पार्टिसिपल ड्रंक होता है. ड्रिंक्ड नहीं होता है, ड्राइव्ड नहीं होता है, ईटेड नहीं होता है ना. डन. Yes, ma'am. Done, ma'am. हो गया. इफ गाइस आर यू हैविंग टाइम, सम टाइम अभी है आप लोगों के पास, देन आई कैन शेयर द फ्रेजल वर्ब्स, और एल्स कल कर लेना. है अभी Tomorrow, आप ma'am. लोगों के I have पास टाइम? no Yes. in class. ठीक है, विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास इन दैट केस. ठीक है. Okay, ma'am. Yeah. All right, guys. So we'll see you in the next class. And please try to join by 6 p.m. ताकि हम लोग start कर सकते, नहीं तो डेली हम लोग 6:05 से start करते हैं. And there are people who would come, देखती हूँ 6 बजे आते हैं कोई लोग, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं. So don't do this. At least 4, 5, 4, 5 लोग हो जाता है. It becomes easy for me to start. नहीं तो 1-2 लोग को लेके start करना becomes difficult, है ना. So please try to be on time. बस 3-4 मिनट पहले आ जाओ so that we can start on time. Okay, ma'am. Okay, guys. Thank you so much for joining, and we'll see you in the next class. Bye. Okay, ma'am. Thank you. Okay, ma'am. Share Thank you. Bye. your Thank hello. you. Thank you.